Good morning, dear student. Today we'll discuss about Khelo India programs. It is a hard fact that the significance of sports and fitness is one's life in invaluable. The regular practice of sports and games inculcates team spirit, develops strategy and analytical thinking, leadership skill, goal setting, and risk taking. As a matter of fact, healthy and fit person make an equally healthy societies and strong nations. Owing to this, it is said that sports is extremely a valuable component of harmonious development of our nation. During the last few years, we have made a steady progress in the field of games and sports. It is an appropriately time to inspire young talent, provide top level infrastructure as well as apex level training. In calculation of a strong spirit of participation in sports among children will enable them to show their actually potential and we can fulfill their dreams to be at the top of the world in the field of sports and game. जैसे कि हम लोगों को पता है, एग्जाम्पल भुवनेश्वर में रिलायंस फाउंडेशन का एक एथलेटिक टीम है. अभी उसका क्या चल रहा है, ग्रास लेवल से चल रहा है. जैसे कि छोटे छोटे बच्चे को लेके किसका परफॉर्मेंस कैसा है उसी हिसाब से उनको लेके सिलेक्शन करके उनको ट्रेनिंग दिया जाता है. ठीक है. खेलो इंडिया प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड ड्यूरिंग 2017 to 18 by Ministry of Sports and Youth Affairs. The Khelo India programs has been intended to revive the sports culture in India at the grassroots level by building a strong framework from all sports play in our country and establish India as a great sporting nation. India has made steady progress in the field of sports. Playing sports inculcates team spirit, develops strategy and analytical thinking, leadership, skill, goal setting, and risk taking. The program has been divided in 11 verticals. The first one, playfield development. The second one, community coaching development. Third one, state level Kho Khelo India centers. Fourth one, annual sports competition. Fifth one, talent search and development. Sixth one, utilization and creation upgradation of sports infrastructure. Sports to national, regional, state sports academies. 8. Physical fitness of school going children. 9. Sports for women. 10. Promotion of sports among specially able persons. The last one is promotion of rural and indigenous tribal games. The first one is playfield development. Under the program of Khelo India, many playfields will be developed at various state and district levels so that basic facilities may be provided to sports person. जैसे कि खेलो इंडिया जब से आया है तभी से हम लोग देख रहे हैं बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में हो, स्टेट लेवल में हो, बहुत सारे जो ग्राउंड्स हैं उसको डेवलप किया जाता है. क्योंकि जब ग्राउंड ही नहीं होगा तो बच्चे खेलेंगे कहाँ, इंटरेस्ट कैसे आएगा. ग्राउंड तो देख के बच्चों का इंटरेस्ट आएगा. दैट्स वाई फर्स्ट प्ले फील्ड डेवलपमेंट. सॉरी. द नेक्स्ट वन, कम्युनिटी कोचिंग डेवलपमेंट. It involves in skill development and sacrification system for sports coaching
Its aim is to involve and identify physical education teachers and to train them as master trainers. जैसे कि हर हाई स्कूल में देखो, कॉलेज लेवल में देखो, एक फिजिकल एजुकेशन टीचर्स है। उनका काम क्या है, जो जो बच्चे आते हैं ग्राउंड में उन लोगों को ट्रेन करना है, कैसे भागना है, कैसे वार्म अप करना है, कैसे रोटेशन करना है, कैसे स्ट्रेचिंग करना है, जो मोटर फिटनेस का एबिलिटीज है हम लोगों का, उसको ट्रेन करना है। ठीक है। देन स्टेट लेवल खेलो इंडिया सेंटर, it involved in supporting better utilization of sports infrastructure in relations to tech. जैसे कि हर डिस्ट्रिक्ट में फिजिकल एजुकेशन टीचर्स जो स्कूल में हो या जहाँ जहाँ गांव से है, वो पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल से नहीं, डायरेक्ट स्टेट लेवल में जब खेल होता है तभी लेके आना चाहिए। लेके आने के बाद हम लोग क्या करेंगे, उन लोगों को स्टेट में उन लोगों का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उनको देख के इंटरेस्ट आना चाहिए। खेल ऐसा हो रहा है कि वैसे हो रहा है, सब चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये चीज़ करना है। नेक्स्ट, एनुअल स्पोर्ट्स कंपटीशन इट इज़ वन ऑफ द सिग्निफिकेंट कंपोनेंट्स ऑफ खेलो इंडिया प्रोग्राम्स. Its aim is to provide a good platform for talent scouting and a way for talent children to achieve excellence in sports. Such competition will be organized in various games such as athletics, boxing, basketball, handball, volleyball, etc. Aspect क्रिकेट को छोड़ के बाकी जितने सारे गेम हैं वो वहाँ पे खेला गया। ठीक है। टैलेंट सर्च एंड डेवलपमेंट, इट एडिशन टू द सिलेक्शन ऑफ प्राइज विनर्स फॉर द scheme, a talent identification committee will be support and identify the talent with the help of best scientific methods. जैसे कि हम लोग बायोमैकेनिक प्रिंसिपल के हिसाब से बच्चों का जो स्किल्स है साइंटिफिक मेथड से हम लोग जॉज करते हैं। नहीं, इसका साइंटिफिक बेटर है। देखो, नॉर्मली तुमको हम लोग बोलेंगे खाने के लिए, तुम लोग क्या करते हो, खाने को जैसे खा रहे हो वो वहाँ पे भी हम लोग एग्जाम्पल हम लोग देखें रनिंग कर रहे हैं, एक लोग ऑन योर मार्क सेट गो, हम लोग बोले तुम लोग ऑन योर मार्क में आस पास सिटिंग ब्लॉक में जैसे बैठना है बैठे हो, सेट में थोड़ा प्रॉब्लम है मगर गो परफेक्ट हो रहा है। आप लोगों का स्लाइड जो है पैर का जो डिस्टेंस जो स्ट्राइड लेंथ है वो सही कर रहा है। तो जो बच्चे को कुछ नहीं पता, जिस बच्चे को कुछ पता है, तो उन दोनों से किसको चूज करना चाहिए? जिस बच्चे को थोड़ा बहुत पता है, क्योंकि हम लोग कम वर्क में ज़्यादा एफिशिएंट मिल सकता है हम लोगों को, क्योंकि उसको टेक्निक पता है, थोड़ा बहुत पता है, उसको और थोड़ा टेक्निक बता देने से वो क्लियर हो जाएगा। और जिसको टोटली कुछ नहीं पता उसको लेने से हम लोगों को टाइम टेकिंग होता है। इसलिए टैलेंट को सर्च करना है। यूटिलाइजेशन एंड अपग्रेडेशन ऑफ स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कि हम लोगों को बोला पहले फील्ड चाहिए बच्चों को खेलने के लिए, देन अभी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, जैसे कि वेट लिफ्टिंग वगैरह, जिम वगैरह, ये सब चीज़ फैसिलिटीज़ होना चाहिए थोड़ा बहुत। ये नहीं होगा तो जब और ट्रेनिंग के लिए हम लोग चाहिए, रोपिंग के लिए चाहिए, जो चीज़ चाहिए हम लोग को नहीं मिलेगा तो परफेक्ट वॉकिंग वर्कआउट जो है वो नहीं दे सकते। इसीलिए हम लोग को अपग्रेडेशन ऑफ स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, जो स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको और थोड़ा लेवल में बढ़ाना चाहिए। जैसे कि हम लोग एक ऐप यूज़ कर रहे हैं, उसका अपग्रेडेशन आता है, मोबाइल यूज़ करते हैं, स्मार्टफोन यूज़ करते हैं, उसका अपग्रेडेशन आता है। सेम चीज़ स्पोर्ट्स का भी अपग्रेडेशन है। नेक्स्ट, सपोर्ट टू नेशनल और रीजनल स्टेट स्पोर्ट्स एकेडमीज, it aims to provide resource for expansion long term athletic development programs. लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म और मिड टर्म। लॉन्ग टर्म में क्या होता है, लॉन्ग टर्म एथलेटिक ये में बहुत प्रोसीजर लंबा होता है, बच्चों को पूरा फिट बनाना जाता है, पूरा फिट बना के भेजते हैं। 8. Physical fitness of school going children. This component aims to develop physical fitness for school going children.
to kid will be provided to schools to measure the physical fitness of schools going children under this scheme. जो बच्चे स्कूल को आते हैं उन लोगों को फिजिकल टेस्ट, जैसे कि एग्जाम्पल उनका हाइट कितना है, वेट कितना है, उन लोगों का एक्यूरेसी कितना है, उन लोगों का एलिजिबिलिटी कितना है, उन लोगों का स्पीड कितना है, उन लोगों का इंड्योरेंस कितना है, वो सब मेजर करके एक फाइल पुटअप करके खेलो इंडिया को भेजा जाता है. देन स्पोर्ट्स फॉर वुमेन. It aims to ensure participation of women in various sports competition, especially where women participation is less. जैसे कि अभी भी हम लोग देखते हैं स्पोर्ट्स में वोमेन का पार्टिसिपेशन बहुत कम हो गया है. अभी धीरे धीरे डेवलप हो रहा है. पहले जैसे वोमेन आते थे नहीं, खेल में कोई नहीं आता था. हाँ, हम लोग लड़कियां हैं, हम लोग क्यों जाएं, मगर अभी थोड़ा थोड़ा इंक्रीज हो रहा है. फिर भी बहुत कम है, मेन के बदले वोमेन बहुत कम है. ठीक है. देन प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स एमंग स्पेशली एबल पर्सन्स. It aims to promote sports among divyang persons. Financial assistance will be provided to state and UT, as well as Sports Authority of India for creation of sports infrastructure for divyang person. Coaching facilities will also be provided to such person. हम लोग जो हैंडीकेप्ड हैं, जैसे कि ब्लाइंड क्रिकेट खेलते हैं, सब अलग अलग, जिसका पैर नहीं है वो सर्जरी करके भी भागते हैं. बहुत सारी चीज़ जो हैंडीकैप्स हैं उन लोग भी स्पोर्ट्स के लिए उन लोगों को कोचिंग मिलता है, स्पेशली कोचिंग भी दिया जाता है. वो लोग भी पार्टिसिपेट करते हैं नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे. द लास्ट वन इज प्रमोशन ऑफ रूरल एंड इंटरनेशनल ट्रैवल गेम्स. एनुअल स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन्स विल बी ऑर्गेनाइज्ड इन रूरल एंड इंटरनेशनल ट्रैवल गेम्स. Alternately, to enhance sports participation in such games. Under this program, a high-powered committee will be identified talent sports person in priority sports discipline, and financial assistance of 5 lakhs will be granted for annum of 8 year honor their skill. 8 साल तक उसको पर ईयर 5 लाख तक मिलेगा जब तक वो अच्छा खेलता रहेगा. इसलिए रूरल एरिया में उन लोगों को पैसा, उन लोगों का फाइनेंस बहुत प्रॉब्लम है, इसलिए ये थोड़ा इंटरेस्ट लेके खेलते हैं. ठीक है. इन खेलो इंडिया प्रोग्राम देयर आर 17 गेम्स आर देयर. फर्स्ट आर्चरी, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, बॉक्सिंग, फुटबॉल, जिम्नास्टिक, हॉकीज, बास्केटबॉल, जूडो, कराटे, खो खो, शूटिंग, स्विमिंग, वॉलीबॉल, वेट लिफ्टिंग एंड रेसलिंग. 16 गेम ऑलरेडी है. ठीक है. थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे.